Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying Virginia Woolf's novel To the Lighthouse, and today we are going to study another important, perhaps very much important question: stream of consciousness. Virginia Woolf novel To the Lighthouse is very much different from conventional novels because she believes that a novel shouldn't be the record of events only, but it should be having some musical, lyrical, and impressionistic piece of painting. So the chief concern of a novel, according to her, was to explore the inner reality and mysteries about life. So life of characters is at the center, and this novel revolves around the lives of the characters. It is not about the physical actions of those characters only, but it is about the inner reality of their mind. So psyche of these characters, it is unfolded, and their inner self is also shown by her. Also, the psyche and inner self of these characters, what they have in their minds, how they react according to the motives of their minds, is very much important. So in this novel, she rejected the conventional technique of narration, and she adopted the stream of consciousness technique. So what is this stream of consciousness technique? According to it, the past is fused with the present, and the present is fused with the past. It means a character always have past actions in his or her subconsciousness mind, and his or her present is influenced by the past. So past shapes the present, and present shapes the past. It means, let me give you the example that in the very first part of the novel, when James wished to go to the lighthouse, and after 10 years when James was going there, the wish was present in the mind, because the fish remained in the mind of James for 10 years. It means what is happening with Lily Briscoe, that she is now able to complete her picture. This is just because of the change in personality of Mr. Ramsay. So she started painting in past, but completed in after 10 years in the present time when she completed. So that influenced the present. So what we act, actually not we, but these characters act in present. This is because of the past movements. So the distinction of time and space are obliterated. The stream of consciousness flows endlessly. So ये stream of consciousness सिर्फ कुछ वक्त के लिए नहीं है, शुरू से लेकर आखिर तक ये माइंड के अंदर रहा है. टाइम एंड स्पेस के अंदर ही वो करैक्टर्स मूव करते रहे हैं. सो दिस टू द लाइट हाउस डजंट हैव लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. जिस तरह आप जानते हैं कि एक राइटिंग को, पीस ऑफ राइटिंग के अंदर सीरीज़ ऑफ इवेंट या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं है. नॉट अ वेल फाउंडेड प्लॉट सच एज वन ऑब्जर्व्स इन अ कन्वेंशनल नावल्स. जिस तरह नावल्स के अंदर, रवायती नावल्स के अंदर एक कंप्लीट प्लॉट होता है जिसके अंदर स्टार्ट के इवेंट्स हैं, मिडल के और एंड के. आप जानते हैं इस तरतीब को, इससे पहले भी हम क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ चुके हैं. Woolf has tried in various ways to impart form and coherence to her material. अब ये बात तो वाज़े हो गई कि इसके अंदर कन्वेंशनल नावल्स की तरह का प्लॉट मौजूद नहीं है, कि वो जो इन्फ्लुएंस्ड
इवेंट्स हैं और जिनका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उस तरह के तो नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है। फिर भी इसने अपने नावल्स को फॉर्म और कोहरेंस देने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए। अब वो कौन से तरीके इसने इस्तेमाल किए, यही आगे क्वेश्चन के अंदर हमने डिटेल में इनको पढ़ना है। फर्स्ट इज़ द टेक्निक ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग, कि एक किरदार अपने अंदर क्या सोचता है, अपने अंदर क्या गुफ्तगू करता है, उसके इनर के अंदर क्या है। इट हैज़ बीन स्किलफुली एक्सप्लॉइटेड, सो इट इज़ अ कांस्टेंट मूवमेंट टू एंड फ्रो बिटवीन टाइम एंड स्पेस। तो किरदार हमेशा प्रेजेंट से पास्ट में झांकता रहता है और उसका पास्ट जो है वो प्रेजेंट को शेप करता रहता है। तो ये कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के अंदर हमेशा वो आगे पीछे मूव करता रहता है। चाहे जेम्स जो है वो आगे अगले वक्त के अंदर गुज़रता जा रहा है, लेकिन हमेशा वो अपनी विश के अंदर को झांकता रहता है, याद रखता है। Among the stream of consciousness novels, perhaps this novel is the most important, and it's one of the good novels based on stream of consciousness. The last paragraph, so a number of devices have been used. अब आइए उन devices के ऊपर, ये तो ओपनिंग डिस्कशन थी, उन डिवाइसेस के ऊपर आते हैं कि जिनकी वजह से इसने अपने नावल को स्ट्रक्चरल यूनिटी दी है। कन्वेंशनल प्लाट तो नहीं है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद से फॉर्म और कोहरेंस देने के लिए मटेरियल की टेक्निक्स हैं। उनमें नंबर 1 इज़ अंडरलाइन है, शी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड दे हैव बीन मेड आइसोलेटेड इन अ रिमोट आइलैंड अवे फ्राम सोसाइटी। माशरे से दूर हैं और एक जो है आइलैंड के ऊपर वो मौजूद हैं। इस लाइन से शायद चलें उसको एक याद दहानी के लिए, शायद आपको याद आता हो वेटिंग फॉर गॉडो, उनके अंदर भी ऐसा ही था कि कुछ लिमिटेड करैक्टर्स थे जो सोसाइटी से दूर थे, बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस के ऊपर थे। खैर उसके अंदर जो टेक्निक्स थी वो अलग थी, लेकिन सिर्फ इस बात से मैंने याद दिलवाया। Further out of these isolated groups, she has focused attention on only 1 or 2 or 3 characters. ये बात पहले भी कर चुका हूँ जब मैंने फर्स्ट एनालिसिस किया था कि there are only few important characters of the novels, and she has shown these characters according to stream of consciousness technique. So what are these important figures? Number 1 is Mr. Ramsay, then Mrs. Ramsay, and third one is Lily Briscoe. There are some other important character, but they have secondary importance in this part of the novel. Secondly, दूसरे पेज से, secondly, the reader is not placed directly within the minds of the characters. एक तो ये होता है कि हम characters के बारे में उनके अपने एक्शन से उनको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ अगर आपने देखा हो तो हमने हर एक किरदार को किसी दूसरे किरदार के माइंड के ज़रिए जाना है। जैसे मिस्टर रामसे को हम उसके बच्चों के ज़रिए जानते हैं कि वो कैसा है, हम मिस्टर रामसे को मिसिस रामसे के ज़रिए जानते हैं उनके माइंड के अंदर कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। और मिसिस रामसे तो खुद ऐसा करैक्टर है कि जिसके ज़रिए हमने कितने ही लोगों को जाना है। टांसले के बारे को जाना है, कार्मिशेल के बारे में हमने मिसिस रामसे के माइंड के ज़रिए जाना है, लिली ब्रिस्को के बारे में जाना है, इवन उसके बच्चों के बारे में। सो एज़ इट हैपन्स इन द मॉडर्न साइकोलॉजिकल नावल्स, और ये जो टेक्निक है रवायती नावल्स के अंदर तो हर करैक्टर अपने एक्शंस के ज़रिए पहचाना जाता था, लेकिन जो मॉडर्न नावल्स हैं वो साइकोलॉजी बेस्ड हैं और दीज आर कॉल्ड द साइकोलॉजिकल नावल्स हैं, उनके अंदर ये अमूमन ये टेक्निक है। बट हेयर द सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ द नावलिस्ट इज़ कांस्टेंट एट वर्क, दैट द रोल ऑफ ए नरेटर। हाँ, लेकिन यहाँ जो नावल राइटर है यानी वर्जीनिया वुल्फ है, उसका अपना करैक्टर भी एज ए नरेटर है, स्टोरी को नरेट कर रही है, तो मुख्तलिफ के बारे में करैक्टर्स के बारे में हमें कैसे वो पहचान देती है, वो देखते हैं कैसे हम मुख्तलिफ ये नरेट स्टोरी को नरेट करते हुए करैक्टर्स को कैसे हमें पहचान देती है। She is controlling and organizing the material. You know, she is the author of the novel. She is the writer of the novel. So she is controlling and organizing the material. And it is the job of a writer to control and organize the novel material. And illuminating it with comments.
और मुख्तलिफ अपने जो स्टोरी के अंदर जो मुख्तलिफ करैक्टर्स के बारे में ख़ुद उसने लिखा, जो कमेंट्स लिखे, उनके ज़रिए भी वो स्टोरी नरेट करते हैं, उनके ज़रिए भी हम मुख्तलिफ करैक्टर्स को पहचानते हैं। इन दिस वे फार्म इज़ प्रोवाइडेड टू फार्मलेस। ये वो टेक्निक थी जिसके ज़रिए एक फार्मलेस विदाउट सीक्वेंस ऑफ नावल्स के इवेंट्स के इसको एक फार्म दी गई। एक तो ये कि सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ द राइटर वर्क्स, और वो उसके अंदर कमेंट के ज़रिए हम उनको जानते हैं, और दूसरा मुख्तलिफ करैक्टर्स को दूसरे करैक्टर्स के माइंड के ज़रिए पहचानते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ वेरी, इसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद भी किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे नावल को की एक स्ट्रक्चर को बयान करता है, और ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। द पेंटिंग ऑफ लिली इज़ अनदर डिवाइस बाय विच द नावलिस्ट हैज़ पैटर्नड हर मटीरियल। द नावल बिगन्स विद लिली on the lawn of the Ramses summer house and it ends with her vision and completing her picture। लिली के पेंटिंग किस तरह नावल के अंदर स्ट्रक्चरल यूनिटी लाती है कि शुरू के अंदर वो पेंट कर रही थी और एट द एंड वो पेंट उससे कर लेती है। तो जो काम उसने फर्स्ट पार्ट के अंदर शुरू किया था एट द एंड वो कंप्लीट हुआ। तो ये ऐसे ही है कि वो फिर से डोर जो है आपस में मिल गया और वो जो प्रॉपर पर्पस था उसका वो मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज़ द टावर ऑफ द लाइट हाउस इन अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूनिटी इन द नावल। देखें इस नावल का तो नाम ही टू द लाइट हाउस है। टू जो है वो रेफ़र कर रहा है किसी चीज़ को। इट मीन इट रेफर्स टू द विश ऑफ द जेम्स दैट ही वांट्स टू गो टू द लाइट हाउस, एंड फाइनली इट बिकेम द विश ऑफ हिज मदर Mrs. Ramsay, and at the end to some extent we may say that it was the wish of Lily Briscoe because she was unable to complete her painting, and it was the wish of it became the wish of Mr. Ramsay, and then he came closer to their children, especially James. It shines throughout at a distance। ये तो नावल पूरे के अंदर शाइन है, हर जगह पे इसका जिक्र है लाइट हाउस का। एंड ऑल द लाइन्स ऑफ द नावल कन्वर्ज जानते हैं एक ही जगह पे आकर मिलना, यानी नावल के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ भी लिखा गया उसका मकसद क्या था? टू द लाइट हाउस जाना, और वही तो रुका हुआ था टुवर्ड्स इट एज द एक्सपीडिशन टू द लाइट हाउस प्लान इन द पार्ट 1। और वो कैसे टेक्निक, वो यूनिटी कैसे आई? वो जिस तरह पेंटिंग थी पार्ट 1 के अंदर वो मुहिम उन्होंने लाइट हाउस की प्लान की, वाइल इट एक्चुअली अंडरटेकन इन पार्ट 3 ऑफ द नावल, और 3rd के अंदर वो वहाँ पे चले गए। दो टू द लाइट हाउस मे नॉट हैव अ लॉजिकल यूनिटी एंड ट्रेडिशनल सीक्वेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट होता है कि जिसके अंदर को वजह बने और उसका आगे इफ़ेक्ट हो। जैसे किसी करैक्टर को अगर आप कहते हैं कि उसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया, तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर दावा बोलेगा, उसको पुलिस के उसे पकड़ेगी। तो ये काज एंड इफ़ेक्ट है, जब एक वजह बनती है तो उसका आगे कोई ना कोई असर नज़र आता है। इट हैज़ अ यूनिटी ऑफ हायर एंड स्ट्रॉन्ग काइंड। इसके अंदर काज और इफ़ेक्ट मैटर तो नहीं है, लेकिन किस तरह की यूनिटी है, दैट इज़ द इमोशनल यूनिटी। Emotional unity is very much important. You know that Mrs. Ramsay in the very first part, when the wish of James was not completed, it was because of Mr. Ramsay's egoism. When there was egoism in the personality of Mr. Ramsay or in the mind of Mr. Ramsay, it means he was not able to understand the emotional needs of his children. And Mrs. Ramsay was able to understand those emotional needs, and at the end when Mr. Ramsay understood the emotional needs and he fulfilled the emotional needs of his children, it means a change occurred in the personality of Mr. Ramsay. So that emotional unity it works as the completion of Lily's picture। और यही इमोशनल जो यूनिटी की वजह से, जब वो इमोशंस यूनाइट हुए हैं बच्चों के, मिस्टर रामसे के, और इसी की वजह से तो लिली ब्रिस्को की पेंटिंग भी मुकम्मल हुई एज द फुलफिलमेंट ऑफ जेम्स प्लान। क्योंकि जेम्स का प्लान कंप्लीट हुआ तो लिली की पेंटिंग भी। इट मीन्स ये जो इमोशनल यूनिटी ऑफ करैक्टर है, तो इस नावल के अंदर जो इमोशंस ऑफ करैक्टर्स हैं उन्हें भी एज ए यूनिटी दिखाया गया।
Similarly, the action of the novel moves from scene to scene and from mind of one person to that of another. ये भी बड़ी अहम बात है, एक सीन से दूसरे सीन के अंदर हम जाते हैं तो नावल्स के अंदर सीन्स वगैरह होते हैं, लेकिन बात करें माइंड्स की, एक करैक्टर्स के से हम दूसरे करैक्टर्स के माइंड के अंदर जंप करते हैं। पहले एक करैक्टर के बारे में सोचते हैं कि पढ़ते हैं कि वो क्या सोचता है, दूसरे करैक्टर के बारे में दूसरा करैक्टर फर्स्ट करैक्टर के बारे में क्या सोचता है, तो ये हम एक दूसरे के माइंड के अंदर भी जंप करते हैं। देयर इज़ वेरी लिटल कॉम्प्लिकेशन एंड ऑल द इंसिडेंट्स टेक प्लेस इन अ क्लोज नीट होमोजीनियस वे। इस नावल के अंदर बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस हैं, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस किसी सेंस द करैक्टर की रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर पैदा हुई भी हैं, तो मिस्टर रामसे का करैक्टर एक ऐसा करैक्टर था कि मिसिस रामसे का, कि जिसके ज़रिए वो तमाम जो थी कॉम्प्लिकेशन से उन्हें दूर कर दिया गया और उन्हें एक होमोजीनियस वे से उन्हें कंप्लीट किया गया। सो टू द लाइट हाउस इज़ अ मास्टर पीस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ एन ऑर्गेनिक होल एंड डिज़र्व्स प्रेज। ऑर्गेनिक होल समझते हैं ना, आप जानते हैं इस तरह पूरा जिस्म है कि जहाँ जहाँ हर चीज़ को होना चाहिए, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को जहाँ होना चाहिए, इसके अंदर भी जो सीक्वेंस जिस तरतीब से बताए गए, चाहे वो डिसऑर्डर थे लेकिन उन्हें एक फॉर्म कोहरेंस तो दी गई, जैसे भी उसको दिया गया उससे वो कंप्लीट हो। मिसिस राम से शी इज़ जस्ट लाइक द पिलर जिसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, तो इसने भी उसे उस बिल्डिंग को ऑफ द इसके स्ट्रक्चर को भी और थीम को भी उठा कर रखा था। देयर आर सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्जीनियस टेक्निक ऑफ नरेशन। आइए उसकी टेक्निक ऑफ नरेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू द लाइट हाउस बिगन विद एन अनस्टेटेड क्वेश्चन। एक सवाल से शुरू हुआ, द विश ऑफ द जेम्स वेदर इट विल बी कंप्लीटेड और नॉट। द रीडर्स नेचुरल कर्टसी हैज़ बिकम इन्वॉल्व। फिर रीडर की कर्टसी आ जाती है, तजस्सुस पैदा हो जाता है। वेदर जेम्स विश इज़ गोइंग टू be completed in next events or in next part or in at the end of the novel, एक courtesy पैदा होती है। With the development of the story, the reader begins to reorganize a pattern in the narrative। और स्टोरी के साथ आगे चलते हुए रीडर उसको रीऑर्गेनाइज उस स्टोरी के पैटर्न को बार बार करता है। एट द सेम टाइम ही assimilates names, facts and ideas by long description of characters, reactions and thoughts in indirect speech। फिर वो उस मुख्तलिफ जो नाम आप हैं करैक्टर्स के, जो उनके बारे में हकाइक हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, करैक्टर्स को डिफ़ाइन किया गया है, उनकी थाट्स वगैरह को फिर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर उसे बयान किया गया। बट द रीडर इज़ कॉन्शियस ऑफ द आथर। हाँ, लेकिन रीडर को ये पता कि आथर उसके अंदर क्या कर रहा है और किस टेक्निक से उसे बयान करता जा रहा है। The use of the third person narration is a very common novel device। नावल्स के अंदर अमूमन ये होता है कि थर्ड पर्सन नरेशन, आप जानते हैं कि यूज़ ऑफ ही, शी, इट वगैरह इस्तेमाल किया जाता है उसे डिफ़ाइन करने के लिए, और ये बड़ा कॉमन है। बट वर्जीनिया वुल्फ इज़ वेरी केयरफुल टू मेक हर डायरेक्शन ऑफ द नरेटिव एज लिटल नोटिस एज पॉसिबल। लेकिन इसने इसे इस टेक्निक से बयान किया है कि पढ़ने वाले को ये समझ ही ना आए कि इस लिहाज से कि उसने कैसे इनको ही शीट यूज़ किया, ऐसे लगे जैसे डायरेक्टली वो डिफ़ाइन कर रही है। ही यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द इंटीरियर मोनोलॉग ऑफ हर करैक्टर। जब अपने करैक्टर्स के माइंड के अंदर चलने वाली इस गुफ्तगू के बारे में बयान करती है, तो वो डायरेक्ट स्पीच की बजाय इनडायरेक्ट स्पीच को इस्तेमाल करती है। और इसी वजह से डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो आप सब्जेक्ट को शुरू पर लेकर आते हैं और इससे आप फ़ौरन पता चलता है कि ये थर्ड जो पर्सन टेक्निक इस्तेमाल की है। लेकिन अमूमन ये जब एंड पे जाता है और ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आता है, तो इससे आम तौर पर रीडर है वो कॉन्शियस नहीं रहता इस टेक्निक के बारे में। सो इट मेक्स इट ईजी फॉर हर टू इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड आइडियाज़ इन टू दीज मेंटल सोलोलॉकीज विच आर आउटसाइड द रेंज ऑफ नॉलेज ऑफ द करैक्टर। सोलोलॉकी क्या होती है? अपने खुद कलामी करना। तो बहुत सारे कलाम को माइंड के अंदर, जो जहन के अंदर इंसान सोचता रहता है, जो सोलोलॉकीज़ हैं, उन्हें भी वो बयान करता है, जो खुद करैक्टर शायद उनके अपने नॉलेज के अंदर ना हो, खुद ना हो, लेकिन उसके माइंड के अंदर जो सोचें चलती रहती हैं वो उन्हें भी निकालती है। इट्स अ साइकोलॉजिकल टेक्निक
कि नफसियाती तौर पर माइंड के अंदर क्या चल रहा है उन्हें भी पेश करती है। फॉर एग्जांपल एट द बिगिनिंग while describing the feelings of James about his father, she moves from what the children is thinking to what Mr. Ramsay habitually do and say to his children. तो शुरू के अंदर वो कहती है जिस तरह फीलिंग्स, जेम्स की फीलिंग्स को उसके बाप के बारे में वो बयान कर रही है, तो वो बयान करती इस तरह चलती है कि व्हाट चिल्ड्रन इज़ थिंकिंग, बच्चा क्या सोच रहा है, टू व्हाट मिस्टर राम से हैबिचुअली डू, कि मिस्टर राम से आदतन जो हरकतें करता है, एंड से टू हिज चिल्ड्रन, आम तौर पर बच्चों को क्या कहता है। तो वो बच्चा जो है वो ये नहीं सोच रहा होता कि मेरे बाप ने क्या कहा, वो ये सोच रहा होता है आदतन ये मेरे साथ कौन सी गुफ्तगू करता है, क्या क्या बयान करता रहता है। तो माइंड के अंदर वो सोचें बच्चे के माइंड के अंदर बाप के बारे में चलती रहती हैं। वर्जीनिया हैज़ केयरफुली अवॉइडेड द drawbacks of the stream of consciousness novel and has given form and coherence to her material. So stream of consciousness novels usually doesn't have the coherence and form, उसका कोई क्योंकि मटीरियल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर सीक्वेंस इवेंट्स नहीं होते, लेकिन इसने इन ड्रॉबैक्स को ख़त्म किया और उसे फॉर्म और कोहरेंस दी है। सो इट इज़ नॉट हैपहैज़र्ड एंड इनकोहरेंट लाइक अदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल। तो ये कोई हैपहैज़र्ड मीन ये कोई इतफाक़ी तौर पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद जानबूझकर इसे कोहरेंस और फॉर्म दी है, जो पीछे बयान हुआ पूरे पेज के अंदर। और आम तौर पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। इंडीड थ्रू हर फ्लेक्सिबल स्टाइल शी इम्पार्ट्स फॉर्म एंड यूनिटी, क्योंकि उसके अंदर रिजिडिटी नहीं है। चाहे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ करिए, लेकिन इतनी रिजिड नहीं है कि वो सिर्फ उसके साथ स्टक हो जाए और कहे कि नहीं, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के अंदर किसी तरह की, चूँकि उसके अंदर फॉर्म और कोहरेंस है नहीं, कोई रब्त नहीं है, कोई उसकी फॉर्म नहीं है, तो मैं भी ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन उसने अपने स्टाइल के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी है और उसको कोहरेंस और फॉर्म दी है। एंड कन्वेज अ सेंस ऑफ अमेजिंग रिचनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ थ्रू आर नावल। और अपने नावल के ज़रिए जो उसका टारगेट था, दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, to tell the art of life, to teach how to live when there are different characters around you, how to develop your personality, how to bring change in your personality, how to understand the emotional needs and bring emotional unity. Everything is taught by her, and it is just amazing piece of writing. Although she uses stream of consciousness novel, but by the flexibility of her style, she has brought sequence and coherence. To the Lighthouse is most natural of all Virginia novel. It has none of the technical complexities of Mrs. Dalloway's, as it moves on normal constructional lines from scene to scene and from mind of one character to that of another. तो जिस तरह इसके दूसरे करैक्टर्स के अंदर कोई टेक्निकल कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इस नावल जैसे मिसेस डालोवे का इसने एग्जांपल दी, इस नावल के अंदर जो है वो इस तरह की कोई कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, क्योंकि मिसेस डालोवे के अंदर वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शनल लाइंस हैं जो आम रवायती तौर पर लिखी जाती हैं और एक सीन से दूसरे सीन से मूव करते हैं और एक माइंड से करैक्टर से दूसरे में। So there is a very little violence and complication in these shifts. तो जब हम इस नावल के अंदर एक सीन से दूसरे सीन में जाते हैं या एक करैक्टर के माइंड से दूसरे करैक्टर के माइंड को समझते हैं साइकोलॉजिकली, तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होती। We easily understand these characters and their minds. Unlike Mrs. Dalloway, To the Lighthouse has 3 main sections, and these sections are subdivided into smaller parts for the sake of convenience. आप इसे समझते हैं। In this respect, Virginia also accepts the normal convention. ये तो आम कन्वेंशन भी है कि मुख्तलिफ, आपको याद होगा जैसे ड्रामा की उसकी बात करूँ, पार्ट 1 के अंदर आपने उसको पढ़ा, द क्रूसिबल, उसे भी 3 पार्ट्स के अंदर, सॉरी क्रूसिबल नहीं, वो क्या उसको आप कहते हैं, मॉर्निंग कम्स इलेक्ट्रा, उसे भी इसी तरह डिवाइड किया गया था डिफरेंट
पार्ट्स के अंदर और चैप्टर्स के अंदर. द डिवीजन ऑफ नावल इनटू 3 मेन चैप्टर्स आर सेक्शंस ईच विद अ डेफिनेट टाइटल. हर एक का टाइटल है. नंबर 1 द टाइम पास है, और पहले का द विंडो है, टाइम पास है, टू द लाइट हाउस है वगैरह, ये इसके नाम रखे गए हैं और इनका टाइटल है. एंड इट आल्सो एड्स टू द नेचुरलनेस ऑफ द नावल, और ये नेचुरल वे ऑफ राइटिंग नावल्स की. फर्दरमोर वर्जीनिया हैज़ यूज द फुल फोर्स ऑफ हर इमेजिनेटिव जीनियस विद ग्रेट क्लैरिटी. इमेजिनेटिव पावर विच इज़ द पावर ऑफ अ राइटर, और उसने अपनी इमेजिनेटिव पावर्स को यूज़ भी किया, और इस तरह के एक साइकोलॉजिकल नावल्स विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कम्प्लेक्स नावल, बट शी हैज़ रिटन इन अ वेरी क्लियर मैनर. Everything is just clear and understandable. She succeeded in striking a balance in her method. In fact, the narrator or the central intelligence in the novel has gained more importance. The central technique of writing or narration writing, as she wrote the comments about different characters, and we understand by this technique. ये भी बड़ा अहम है, but it has become less indiscernible. लेकिन ये दरियाफ्त करना ये बड़ा अहम है कि उसे पढ़ते हुए आपने उसकी टेक्निक ऑफ नरेशन के ज़रिए उन करैक्टर के बारे में उन कमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है. लास्टली इट इन द कंक्लूडिंग पार्ट 3, वर्जीनिया हैज़ गिवन द illustrations of the art of structure building of the story, that the diverse character Lily Briscoe, Mr. Ramsay, James, Cam, McAllister's boy, who are all alive and united, and persons like Mrs. Ramsay, Charles Stanley, Mrs. Carmichael, William Banks, Minta, who are physically absent and they are active in the mind of others, all at the very end of the novel. ये बात पहले भी हो चुकी है कि जो करेक्टर दे आर फिजिकली प्रेजेंट हैं वो तो लास्ट सीन के अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन जो करेक्टर्स प्रेजेंट नहीं थे, they were although not physically present but they were present in the mind of those characters. जेम्स के जहन के अंदर मिसेस रामसे थी, स्पेशली बात कर रहा हूँ. लिली ब्रिस्को के जहन के अंदर मिसेस रामसे थी, तो वो करेक्टर्स भी उन्होंने मरने के बाद भी उनके यानी उनके पास्ट ने इन करेक्टर्स के प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस किया है, एंड दे रिमेन्ड द पार्ट ऑफ देयर सबकॉन्शियसनेस. और यही तो जो टू एंड फ्रो मोशन है फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट टू प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. I hope so you will enjoy this question. See you with another question. Allah Hafiz.